joined by senior BJP leader and Rajya Sabha MP Sushil Modi. Sir, we have seen the statement of Udayanidhi Stalin, but he remains defiant, and his father MK Stalin is also supporting his statement. See, it is not important that he has remained defiant. The issue is that the Congress is supporting his statement. Congress has not taken a stand on this issue. They are saying every party has its own stand, has its own ideology. So in a way, Congress is supporting what Stalin has uttered, what Stalin has said. And see, this is the design. It is a deliberate statement by Stalin's son, Udayanidhi, because he read a prepared speech. And the conference in which the speech was read, it was eradication of Sanatan Dharma. It means they want to destroy the Sanatan Dharma. And see, this is the history of Congress. Congress is always against the Hindu Dharma, Hindu religion, and this is not the first occasion. There are dozens of occasions in which Congress people and this Mahagathbandhan, this Gathbandhan, which had their meeting in Mumbai, nobody has come out openly. Nobody has come out openly condemning the statement of this Udayanidhi Stalin. So this is very deplorable that the Congress has not taken a clear stand on this issue, and they are in a way supporting the statement of the DMK leader. So, as far as Bihar's crime rate is concerned, we have seen again in this week so many murders are taking place. Last night, RCP Singh, who is the BJP leader now, his relative was shot. Again in Betia, BJP leader was shot. On one hand, we see so many crimes taking place. On the other hand, JDU has now it's thinking of formulating a 5-member group to send Ladakh so that they can see how much land is acquired by China. So how do you see this development? देखिए, जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ जदयू का अलायंस हुआ है, दिन पर दिन बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है. इन द लास्ट 12 months, more than 150 attack by the liquor mafia and the sand mafia on the police. प्रतिदिन पुलिस पर हमले हो रहे हैं, जो विटनेसेस हैं उन पर हमले हो रहे हैं. अरिया के अंदर जो पत्रकार की हत्या हुई वो कौन था? वो एक मामले में, एक हत्या के मामले में गवाह था. पूर्णिया के अंदर 4 आदिवासी जब कोर्ट में जा रहे थे बयान देने के लिए, उन पर हमला हुआ. समस्तीपुर में हुआ. और आरसीपी सिंह, जिन्होंने वर्षों तक काम किया नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि पिछले 6 महीने से वो दिन रात नालंदा जिला, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहाँ पर काम कर रहे हैं. और इसलिए उनको डराने के लिए उनके नज़दीकी रिश्तेदार पर हमला किया गया और ये कहा गया कि तुम आरसीपी सिंह का काम करना बंद कर दो. तो देखिए, बिहार की स्थिति दिन पर दिन भयावह होती जा रही है. लॉ एंड ऑर्डर, शराब माफिया, बालू माफिया, और मंत्रिमंडल के अंदर भी बड़ी संख्या में ऐसे मंत्री हैं जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं. और यही कारण है कि बिहार फिर पुराने दिनों की ओर लौट कर जा रहा है. सर, रतन सिंह ने जो डिसीजन लिया है कि 5-member टीम भेजेंगे लद्दाख देखने के लिए कि चाइना ने कितनी ज़मीन कब्जे में की है, इसे कैसे देखते हैं? ये तो एक मजाक है. एक क्षेत्रीय दल है, उनका कश्मीर में क्या है, उनका लद्दाख में क्या है, कहाँ जाकर देखेंगे, किसको रिपोर्ट देंगे? तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा भद्दा कोई मजाक हो सकता है. ये तो जो सेना है उस पर अंगुली उठाना है. इनको सेना पर भी भरोसा नहीं है, इनको सर्जिकल स्ट्राइक पर भी भरोसा नहीं है. अरे भी, जब सेना के प्रमुख बाकी लोगों ने इस बात का खंडन कर दिया कि हमारी कोई ज़मीन कब्जे में नहीं गई है. हाँ, जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन, जो अक्साई चीन का इलाका है और बाकी है, वो चीन के कब्जे में है. उसको देख कर आकर कोई रिपोर्ट देना चाहे तो अलग बात होगी. और वो कोई क्षेत्रीय दल, वो बिहार की राजनीति करने वाले लोग, और वो जा रहे हैं लद्दाख, तो मुझे तो नहीं समझ में आता है कि ललन सिंह जो है, जो कर रहे हैं, उसका कोई औचित्य भी है. Last question, sir. KK Pathak, who is the ACS of Education Department, he is being criticized by several teachers association as well as teachers in Bihar. Now, today teachers are going to protest against him by tying a black band.
कैसे देखते हैं इसको, ये पूरा का पूरा प्रकरण जो चल रहा है देखिए, टीचर्स? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी गई, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी गई, जो छठ पर्व है उसके अंदर कटौती कर दी गई। अगर हिम्मत हो तो मोहम्मद साहब का जन्मदिन और चेहलुम उसकी छुट्टी में कटौती करते या उसको रद्द करते। तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन की छुट्टी को रद्द करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण की जो जन्मदिन है जन्माष्टमी, उसकी छुट्टी को रद्द कर दिया और ज़बरदस्ती खोला। तो रक्षाबंधन के दिन कोई बच्चे स्कूल नहीं गए। और मैं स्कूली छात्रों से अपील करूंगा कि वो स्कूल का बहिष्कार करें और जन्माष्टमी के दिन कोई बच्चा स्कूल न जाकर नीतीश कुमार को बता दे कि आपके इस निर्णय के साथ बिहार के लोग नहीं हैं। और जब कब एक शिक्षक ने इसका विरोध किया, क्योंकि उसकी बहन जो थी वो राखी बांधने के लिए उसको 90 किलोमीटर जाना पड़ा, जो कि स्कूल खुला था, तो उसको सस्पेंड कर दिया। इससे ज़्यादा कोई तानाशाही हो सकती है क्या? इससे बड़ी कोई तानाशाही हो सकती है क्या? और नीतीश कुमार के पार्टी के पक्ष में खड़े और कह रहे हैं कि जो किया जा रहा है बहुत सही किया जा रहा है। तो इसलिए अगर हिम्मत है तो वो करके दिखलाएं। लेकिन जिस तरह से आपने और कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन में 220 दिन का प्रावधान है, तो राइट टू एजुकेशन में तो ये भी लिखा है सेक्शन 27 में कि कोई भी अन्य जो नॉन एकेडमिक कार्य है, गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। और आप चाहे वो कास्ट सर्वे हो, चुनाव की वोटर लिस्ट हो या सरकारी योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो, हर काम में टीचर्स को लगाते हैं। तो वहाँ से टीचर्स को विड्रॉ करने के बजाय अपने स्कूलों को ही और खोल दिया, कहा कि सारी छुट्टियाँ रद्द की जा रही है। महत्वपूर्ण पर्व पर जो छुट्टी है, ये जितिया का पर्व है, तीज का पर्व है, गुरु नानक देव की जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा है। तो आप अगर ज़बरदस्ती खोलेंगे भी स्कूल तो कोई बिहार का बच्चा पर्व के दिन स्कूल नहीं जाएगा। अधीर रंजन तो चौधरी ने एक कंट्रोवर्सी कर दी है। जब वन नेशन वन पोल की बात हो रही है तो पहले उन्होंने हामी भरी थी, फिर अब ये हो रहा है कि अगर जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है उसमें अगर ये डिस्कशन होता है तो कांग्रेस बॉयकॉट करेगी इस सेशन को। मैं अभी तो यही पता नहीं कि ये सेशन में क्या होने वाला है। तभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ और उसको लेकर के लड़का होगा कि लड़की होगी, तो भले एजेंडा तो आने दीजिए। क्या एजेंडा है केंद्र की सरकार, जब या स्पीकर या जो भी उसकी प्रक्रिया है, जब एजेंडा घोषित होगा कि क्या एजेंडा होगा, तब ना कोई स्टैंड लिया जा सकता है। तो ये तो एक अनावश्यक भी, आपने पहले क्यों बाइकआउट किया, क्यों आपने विड्रॉ कर लिया? कि आप उस कमेटी में रहकर नोट ऑफ डिसेंट दे सकते थे। और कोई क्या 10 दिनों के अंदर कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है क्या? पार्लियामेंट का सेशन 18 से हो रहा है और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 20 लाख ईवीएम मशीन चाहिए। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ईवीएम मशीन है? क्या इलेक्शन कमीशन चाह कर भी तत्काल चुनाव करा सकता है? तो इन लोगों को तो नरेंद्र मोदी की हर बात का विरोध करना है। अरे एक डिबेट प्रारंभ हो, एक चर्चा हो रही है, आप भी अपनी बात आकर कहिए। लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी जो कुछ करेंगे उसका विरोध करना, अंध विरोध करना, यही इनकी नीति है। Thank you for speaking to us. So this was senior BJP leader and Rajya MP Sushil Modi speaking exclusively with CNN News 18.